आदिलाबाद में एसआईआर का अमल जारी, सियासी जमातों और समाजी कारकुनान के बेलौस खिदमात से अवाम को मिल रही है राहत। 2002 की फहरिस्त में नाम ना होने और स्पेलिंग की गलतियों से शहरियों में शदीद बेचैनी। एनुमरेशन फार्म इंग्लिश या फिर उर्दू जबान में फराहम ना करने से एक बड़ा तबका बेचैन। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह के मातहत ओहदेदारों को अवाम के साथ मुकम्मल ताउन की सख्त हिदायत। Welcome to the Success School English Medium Adilabad. No heavy bag burden. No extra tuition. Admissions are in progress. From nursery to class 5. Behind Urdu Ghar Shadikhana, Masood Nagar, Adilabad. Contact 97685001. आदिलाबाद का था, जैनूर में डाल दिया। अच्छा, अभी नाम आपका जैनूर में बता? जैनूर में बता रहा हूँ। आप पहले से यहीं पर है या जैनूर में थे? नहीं, पहले से यहाँ पे जो बचपन है। అయితే 2002లో మా పేరు లేదు కదా, మరి 25లో ఓటు తీసేస్తారా అనే అపోహ అనుమానం అవసరం లేదు। सर ये सबसे बड़ा डाउट है कि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि जिनकी एज एबव 60 है, अभी तक उन लोगों के नाम 2002 के लिस्ट में नहीं मिल रहे, तो इसलिए लोग परेशान हैं। उसके लिए कैसा? ఇక్కడ ఒక చిన్న అవగాహన లోపం ఏముంటుందంటే, వీళ్ళు కొంతమంది వివిధ ప్రాంతాల్లో 2002లో ఏదో ప్రాంతంలో ఉండి ఉంటారు। చాలామంది నిరక్షరాస్యులు, నిరుద్యోగులు కూడా ఏం చేస్తారంటే పక్క రాష్ట్రంలో అప్పుడు ఉండి ఉంటారు। బహుశా అక్కడ వాళ్ళ నియోజకవర్గం పేరు తెలియకపోవచ్చు। మనకు ఆ రాష్ట్రం పేరు చెప్తే మేము ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసి రాస్తాం। చాలామంది ఇప్పుడు మాది లేదు అంటున్నారు। మళ్ళీ మేము సెర్చ్ చేస్తే 2002 మహారాష్ట్రలో కానీ తమిళనాడులో కానీ పక్క రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు వలసలు ఇక్కడ మనకు రావడం జరిగింది। ఇక్కడ మనకు బార్డర్ జిల్లా కాబట్టి ఎక్కువ మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన ఓటర్లు ఉన్నారు। వాళ్ళు ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినారో ఆ ప్రాంతం చెప్తే మేము ఆ ప్రాంతం నియోజకవర్గం ఏమో తెలుసుకొని అక్కడ మేము సెర్చ్ కొడితే మాకు 90% ఓట్లు దొరుకుతున్నాయి। ఆ వివరాలు రాస్తాం। ఒకవేళ నిజంగానే కొంతమందికి ఒకవేళ 2002లో ఓటు లేదనుకుందాం, లేకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు। ప్రస్తుత వివరాలు 3వ భాగంలో ప్రస్తుత వివరాలు రాసి సమర్పిస్తే మన 31వ తారీఖు ఇలా లిస్టు కూడా మనకు ఓటర్ జాబితాలో వస్తుంది। వాళ్ళకు నోటీస్ ఇస్తాం। 2002లో లేకపోవడానికి కారణం అంటే ఆ వారు మన దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా దానికి సంబంధించిన ధృవపత్రాలు జత చేసి మనకి ఇస్తే మళ్ళీ ఫైనల్ రోల్లో వచ్చే అవకాశం కూడా ఉన్నది। लोग सर इसलिए डर रहे कि मतलब घर पर अगर नोटिस आई तो फिर उसको आपने आइडेंटिफिकेशन देना है कि इंडियन है या नहीं है, तो वही लोग डर रहे हैं। 2002 में लिस्ट नहीं है, फिर उसको प्रूफ करना है, तो इस पर क्या? మనకు 13 రకాలైనటువంటి ఆధార పత్రాలు సమర్పించమన్నారు। ప్రభుత్వం సంతకంతో ఉన్న ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఏ డాక్యుమెంట్ కూడా మనము సమర్పించాల్సి ఉంటుంది। దేశంలో ఉంటే సరిపోతుంది। 2002కు మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఏదైనా రేషన్ కార్డు కానివ్వండి, ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ కార్డు కానివ్వండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ కానివ్వండి, కుల ధృవీకరణ పత్రాలు కానివ్వండి, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్ ఏది ఉన్నా కూడా ఆ ధృవపత్రం సమర్పించి ఎప్పుడు మనము డ్రాఫ్ట్లో వాళ్ళ పేరు వస్తుంది, నోటీస్ వస్తాం। ఎందుకంటే మీకు 2002 ఓటర్ జాబితాలో లేకపోవడానికి కారణం అట్లాంటి లేని వారికి వాళ్ళ జెన్యూన్నెస్ రుజువు చేసుకుంటూ ఫామ్ 6 పెట్టేసి ఒక అఫిడవిట్ పెట్టేసి డిక్లరేషన్ ఫామ్ 6తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఈ ధృవపత్రాలు పెట్టిస్తే మళ్ళీ ఫైనల్ రోల్లో జత చేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఇందులో ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు। जिले आदिलाबाद में एसआईआर के कामों का अमल इंतहाई तेजी के साथ जारी है। एक तरफ जहां जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी और रहनुमाई कोशिशें की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी शहरियों की मदद के लिए मैदान में उतर आई हैं। अवाम की सहूलत के लिए शहर के उर्दू घर शादी खाने में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एक खुसूसी कैंप चलाया जा रहा है, जहां न सिर्फ फार्म भरकर दिए जा रहे हैं बल्कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल भी जंगी खतूत पर जारी है। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने इस पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए अपने मातहत ओहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की कि वह अवाम को हर मुमकिन मालूमात और ताउन फराहम करें। ऑनलाइन का अमल यहाँ पर जो भी चल रहा है या मुख्तलिफ लोग जो क्योंकि ख़ासकर इससे अवेयर नहीं है या लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ज़रिए से क्या मुश्किलात आपको ऑनलाइन करने में पेश आ रही? क्या अभी तक आप लोग कितने दिन से वर्कआउट यहाँ पर कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर एक 10 डेज से तो वर्क कर रहे हैं। जो अभी अनएजुकेटेड लोग हैं तो उन लोगों के लिए बस OTP की प्रॉब्लम चल रही। जैसा वो लोग आधार कार्ड पे एक नंबर है रहा और एक नंबर हमको यहाँ पर बोल रहे हम ऑनलाइन करने के लिए OTP अलग नंबर पे जा रहा, या फिर उन लोगों को लिंक एक नंबर पे आधार कार्ड रह रहा और नंबर हम यहाँ पर एक सर्च मार रहे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही। और मेन सबसे बड़ी बात, अपडेटेड कुछ भी चीज़ नहीं रह रही लोगों की, ना वोटर आईडी कार्ड पे फ़ोन नंबर लिंक रह रहा, ना आधार कार्ड पे लिंक रह रहा। अगर ये सब चीज़ें अगर मुकम्मल पूरी अच्छे तरीके से रही तो यहाँ पर ऑनलाइन करने में आसानी रहती। अभी अब जगह तरह तरह अब जिनका महल्ला है वहाँ पर फॉर्म्स फिल करने के लिए लगा रहे, आप लोग वहाँ पर जाके फॉर्म फिल करके हमारे पास भी ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर हमारे पास भी ऑफलाइन भी भर के हम लोग ऑनलाइन कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि मतलब 2002 की लिस्ट में नाम हमारा गलत था, आप सही करवा के दो, या इसके लिए
कुछ फिक्रमंद लोग परेशान हैं, ऐसा कुछ आपको नजर आएगा? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उनको इस तरीके से हैंडल करें कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता। वो अलग एक स्पेलिंग है, यहाँ पर अभी हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं इसमें न्यू डाटा डालते, वो उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं जा रही, वो ऑलरेडी उनका एपिक नंबर मारते ही वो ओल्ड डिटेल्स दे दे रहा, और फिर अब हम यहाँ पर न्यू डिटेल्स फिल कर दे रहे, अभी आपका न्यू हो जाता। इंतजामिया के साथ आदिलाबाद की मुख्तलिफ समाजी और फलाही तंजीमें बिला लिहाज मजहब व मिलत शहरियों की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। इन तंजीमों की जानिब से फार्म भरने और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने में भी भरपूर ताउन पेश किया जा रहा है। अगर दोनों फार्म भी गलत गए तो क्या एमआरओ की तरफ से और दूसरा फार्म मिलेगा, ऐसा कुछ है? आगे सर ऑनलाइन में एडिट ऑप्शन है, एडिट कर सकते, मगर लोग जब देते ना वो अच्छा ठीक सर ऐसे करेक्ट दिया तो अच्छा रहता। अपने को ऑप्शन है वेरीफाई कर सकते, मगर वो 24 तक ही रहता रिफाई अगर गलत लिखे तो 24 तक, उसके बाद सिस्टम लॉक हो जाता। नहीं, अभी ये फिजिकली फॉर्म अगर कोई गलत भर के दे दिए तो फिर से उनका फ़ोन नंबर रहता ना, इनका फ़ोन नंबर भी ले रहे हैं हम, अगर कुछ डाउट आया तो उनको फ़ोन करके इंक्वायरी करके फिर से लिख रहे, फिर से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। या अगर ऑनलाइन जो बाहर से कर रहे हैं उसमें अगर कुछ मिस्टेक गया तो उनका फ़ोन नंबर भी है, अपने ऐप में आ जाता डायरेक्ट, वो उनका फ़ोन नंबर रहता, उनको फ़ोन करके कुछ डाउट है तो वेरीफाई कर। अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन, एक्टिव मेंबर, जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और भी जो नुमाइंदे हैं और भी पार्टियां वाले, अच्छे ज़ोरों से काम चल रहा है। मगर कुछ वार्डों के अंदर SIR क्या है, क्या होने जा रहा है, ये अवाम को पता नहीं है। मेरी आदिलाबाद की अवाम से गुजारिश है कि जितने भी समाज के लोग आदिलाबाद में बसते हैं कि सभी मैपिंग तो हो गई है, SIR में अपना नाम चढ़ाए और ऑनलाइन BLO कर रहे हैं, वो फॉर्म्स BLO को लाके दे दिए। जिसको ऑनलाइन करने आता है वो भी ऑनलाइन कर ले सकते हैं, और जिसको ऑनलाइन करने नहीं आता, फॉर्म भरने नहीं आता, जहाँ पर कैंप लगे हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वहाँ पर जाके पूरी कोशिश करें भराने की, वरना ये हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे अपना वोट निकल जाएगा। वोट निकल गया तो बहुत से मसले मसाइल होते हैं आप लोगों के सामने। बंगाल और बिहार है, देख रहे हैं आप लोग कैसे वोट कट रहे हैं। नकीब मिलाद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिलाद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, याकूतपुरा MLA जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब की हिदायत पे, आदिलाबाद सदर जनाब नज़ीर अहमद साहब की सदारत में आदिलाबाद के अंदर तमाम वार्डों के अंदर जो है सो SIR कैंप्स लगाया जा रहा है। और मेरी अदबन गुजारिश है कि तमाम लोगों से, अभी तक जो है सो आदिलाबाद का परसेंटेज बहुत कम है और लोग जो है सो अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे और लाके BLOs को दे रहे नहीं। BLS जो है सो डोर टू डोर नहीं आ सकते, तो आप तमाम लोग जो है सो एक कोई जगह प्लेस पे जो है सो बैठ कर BLOs के पास फॉर्म ला कर देते हो, बहुत बेहतरीन रहता, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 24 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तमाम लोगों से गुजारिश है कि SIR के फॉर्म्स जो है एप्लीकेशन फिल करके अपने BLOs के पास ला कर दे और ऑनलाइन करा दे। और किसी को भी कोई परेशानी हो, अगर किसी का 2 वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं मिला तो आप हमारे तमाम पार्टी के लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते, या फिर हमारे पार्टी ऑफिस पर भी जा सकते, या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते। मेरा मोबाइल नंबर 8374483733, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते। मैं लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि जो भी NGOs है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हैं और ऑर्गेनाइजेशन से, अगर महल्ले वाले सतह पे नौजवान बच्चे एजुकेटेड लोग हैं, ये काम को अंजाम दिया तो बहुत आसानी से होती। ये लोग जो गलत फहमी जहन में रखे हुए हैं SIR से ऐसा होता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, काफ़ी अच्छा प्लान करे, क्योंकि जो हमारे जो करेक्शंस थे हर हमेशा प्रॉब्लम सारे ऑफिशियली कामों के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको करना आसानी है, इसको इतना टेंशन नहीं लेना। हम लोग भी मौजूद है, कानून के जो नुमाइंदे के एडवोकेट्स है, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी मौजूद है, इसके लिए रहनुमाई करेंगे। आगे जो भी मुश्किलात प्रॉब्लम आएंगे उसके अंदर हमारा सेवा फाउंडेशन का भी सपोर्ट रहेगा, वकील साहब का भी सपोर्ट रहेगा। ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी आदिलाबाद में सरगर्म है काम के लिए, तो इसके लिए हम हमेशा उनके साथ में रहेंगे। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट, सेवा फाउंडेशन, अमन फाउंडेशन, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, मुकामी बल्दियाती काउंसलर, सियासी व मजहबी जमातों के कायदीन, समाजी कारकुनान भी अवामी खिदमात में हमातन मसरूफ़ हैं। इमदाद व ताउन के इस सिलसिले के बावजूद शहरियों को चंद संगीन मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से तशवीश का माहौल है। अवाम का कहना है कि उनके नाम हर जावी से 2002 की फहरिस्त में तलाश करने के बावजूद नज़र नहीं आ रहे हैं।
जिसकी वजह से कई शहरियों बिलखुसूस उम्र रसीदा अफराद फिक्रमंद है। माजी में ऑनलाइन डेटा के इंदराज के वक्त नामों के स्पेलिंग में होने वाली गलतियां इसकी असल वजह बताई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन करते वक्त में क्या सबसे पहले मुश्किलात आपको ऑनलाइन करने में पेश आ रही है? सबसे पहले हमें मुश्किलात आ रही हैं OTP की, और जब लोग आ रहे हैं तो ये जो फॉर्म है वो भर के नहीं ला रहे हैं, जिसमें 2002 का हमारे पास इसमें जो डाटा लिखा जाएगा वो भर के नहीं ला रहे हैं, जिससे हमें मुश्किलात हो रही है। हमें एक फॉर्म भरने के लिए आधा 1 घंटा चल जा रहा है खाली फॉर्म से। अगर भर के लाएंगे तो वो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा या फिर 5 मिनट में हो जाएगा। तो आप अगर किसी बाहर के लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए आना है तो आप क्या बुनियादी चीज़ें उनको लाने के लिए कहेंगे आप? तो इलेक्शन कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर जो लिंक है वोटर ID को वो वाला, और आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है वो वाला, और आधार कार्ड पे और वोटर ID कार्ड पे नाम सेम रहना। जैसा कि अगर नाम सेम नहीं रहा तो मिसमैच दे रहा हूँ, ऑफलाइन भर के BLO को देना है। करीब PS नंबर 189, 190 और 191 में 40% फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं और ऑनलाइन भी हो चुके हैं। और साथ ही साथ अब आने वाले वक्त में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर कुछ ऑब्जेक्शन रेस हो रहा है उसके ताल्लुक़ से, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को वहाँ तक जाने की नोटिस का जो पीरियड है वहाँ तक उससे पहले ही मसलों को हल कर लिया जाएगा। यहाँ जिन लोगों का लास्ट टाइम जो मैपिंग हो चुका था उन लोगों को तो बहुत आसानी से प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जिनका मैपिंग नहीं हुआ था अब ऑनलाइन करने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जितने भी फॉर्म्स यहाँ पे फिलअप हुए हैं उसका मेजॉरिटी में अभी तक ऑनलाइन हो चुका है, उसमें कुछ भी दुश्वारी पेश नहीं आ रही है अभी तक। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में जितने लोगों का नाम उसमें अगर नोटिस इशू होंगे उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या तैयारी करना है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग भी। जैसा कि अब हुकूमत से भी हम लोग मुतालबा करे हैं कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में जिस तरह से कर्नाटक में दिया गया था उसी लिहाज से तेलंगाना में भी अनकरीब सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट का भी हम लोग मतलब नेम करेक्शन रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, उसके लिए भी एक टीम तैयार किए हैं। एक लीगल टीम भी हमारे पास तैयार है एडवोकेट्स की। लोगों को तकलीफ़ नहीं होना उस लिए हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज ये काम कंप्लीट होने के बाद कल से हम लोग डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। हर डोर पे जाके जितने लोग भी फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं करे या फिर उन लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंचा, बाज़ लोगों को फॉर्म अगर नहीं पहुंचा तो उन लोगों को भी पहुंचाने का काम करते हुए बहरहाल SIR के अंदर एक भी हमारे वार्ड नंबर 31 से एक भी बंदा ये चीज़ से महरूम नहीं रहना। बेशतर ज़्यादातर महाराष्ट्र यहाँ से बॉर्डर जो है वहाँ के जो लड़कियाँ जो तेलंगाना से जो शादी होकर महाराष्ट्र में गए, वहाँ के उनके शौहर हजरात आ रहे हैं कि हमारे बीवियों का जो शौहर के नाम से जो होता तो मैरिड है बताने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट्स या नहीं तो निकाह नामा, वैसे किसी का गुम हो जा रहा है तो उसको करेक्शन से नाम हो के करेक्शन करा रहे हैं। और ये मैरिज सर्टिफिकेट के ज़रिए से कि तेलंगाना में थे अब यहाँ पर आ गए, तो उसके लिए SIR के लिए थोड़ा परेशान लग रहे हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व करके भिजा दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल है। बावजूद इसके एनुमरेशन फॉर्म्स ना ही उर्दू में फराहम किए गए और ना ही इंग्लिश में, जिसके बायस एक बड़ा तबका अपने नामों के सही इंदराज को लेकर आज भी बेचैनी के आलम में है। जो भी आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं मिल रहा वो रिकॉर्ड आप लोग बाद में आपको अगर नोटिस आता है वो नोटिस के बेस पे आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट आप 2002 में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, इवन आपका अगर बैंक पासबुक है वो भी चलेगा, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड तो जब नहीं था, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से इशूड है वो 2002 का होना चाहिए, जिसके बेस्ड पे आपको नया इलेक्शन कार्ड दे दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट जो ड्राफ्ट बनेगा वो ड्राफ्ट में आपका नाम मेंशन रहना मुश्किल है, उसके बाद आपको नोटिस आएगी। वो नोटिस को आप रिप्लाई देते हुए आपका किसी भी तरीके का एक लिंक डॉक्यूमेंट जो बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट से इशूड है ऑल ओवर इंडिया में, वो अगर आप सबमिट करते हो तो आपको नया इलेक्शन कार्ड देते हुए आपका लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। लोग ये खौफज़दा है कि अगर उनको कल को
नोटिस आती है और नोटिस का जवाब देने में वो नाकाम रहते हैं, तो कहीं हमारा मुकद्दर डिटेंशन सेंटर ना हो जाए, ये खौफज़दा है। नहीं, ऐसा तो अभी जो आप जैसे बता रहे हैं डिटेंशन होना, वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से ही बताया जा रहा है कि अगर आपकी मैपिंग 2002 की लिस्ट में नहीं होती है, बाद में आपको नोटिस में सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि आप 2002 में इंडिया के नागरिक थे, या आपको इंडियन सिटीज़न थे, या आप इंडिया में मौजूद थे। वो आप अगर प्रूफ कर पाते हैं, जैसे आपका 10th मेमो है, या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट, टीसी, या फिर आपका बैंक में पासबुक, या फिर वो टाइम पे ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करते थे, वो इन तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो भी गवर्नमेंट से इशूड डॉक्यूमेंट्स है, ना कि बस तेलंगाना गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट से वो डॉक्यूमेंट अगर इशूड है, तो आप उसके बेस पे आपको नेक्स्ट इलेक्शन आईडी कार्ड में नया कार्ड इशू किया जाएगा और आपका सेम यही ड्राफ्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि एक प्रोसेस रखा गया है, जो आपके BLOs है, एरिया के BLOs, वो BLOs की लॉगिन में या फिर उनकी एक लिस्ट या उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपके एरिया के नागरिक को कवर करते हुए आप एक लिस्ट जारी करें। उसी बेस पे अगली बार जब जो लोगों का नाम 2002 से टैली नहीं हो सका और फॉर्म सही तरीके से भर के नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग की भी सेम BLO के लॉगिन में नामा आएंगे। वो लोग जाके घर को वेरीफाई करते हुए अपने नागरिक का बैकग्राउंड वेरीफाई करके उसको नया कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और ये डिटेल्स दो मैच होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी हमारा नाम आधार कार्ड में ये है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक 2002 में इलेक्शन कार्ड में रॉन्ग गिरा था, नहीं तो जब सही है, अब आधार कार्ड पे ये दूसरा नाम गिर गया, हम क्या करना। तो लेफ्ट साइड में जो आप कॉलम 2002 का भर रहे, उसमें सिर्फ 2002 में जैसा है एज इट इज़ भरना है। अभी का अपडेटेड जो आपका आधार कार्ड पे वैसा नहीं भरना है, 2002 के हिसाब से भरना है, ताकि जो ऑफिशियल्स टैली करें तो दोनों चीज़ें मैच हों। और तकरीबन आदिलाबाद के अंदर मैं भी कुछ वार्डों में जाकर जायज़ा लिया हूँ। जैसा कि आप बोले जैनूर का मामला, उस तरीके से जैनूर ही बोल के नहीं है, कुछ लोग हैदराबाद में भी है, उनके भी वोट यहाँ नहीं आ रहे। और परसों भी इस मामले में हमारी कल भी और SIR की मीटिंग हुई थी, जो हमारे आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज कंडीशनर रेड्डी के ऑफिस पर यही मुद्दे पे बात हुई थी। अगर जो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है जिस चीज़ का भी, तो उनके इल्म में और DCC के इल्म में डालकर मिनिस्टरों तक पहुंचाने की काम चालू करे। मैं सेल्फ में जनाब नज़ीर साहब की तरफ से मुझे इसके लिए रखा गया, ये काम के लिए। ऑलरेडी मैं कंटिन्यूसली घर घर को जाके कर रहा था, लेकिन नज़ीर साहब के इंस्ट्रक्शन थे कि 2 दिन पहले मुझे कैंप लगाओ, बच्चों को जमा करो, जल्दी फॉर्म फिलअप करना नहीं हो रहा, बच्चे अगर रहेंगे, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो फॉर्म फिलअप करना जल्दी होता। तो 2 दिन से हम कैंप लगाए, कल से कैंप चालू करें, आज भी है, और इंशाल्लाह जब तक हमारे एरिया का कंप्लीट नहीं होता तब तक हम ये कैंप को कंटिन्यू रखेंगे। इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।